آپ ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں دیکھیے ہر چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، شیو کرنے سے، حجامت بنوانے سے، جوتا پہننے سے، خریدنے سے، باہر جانے سے، حتیٰ کہ چہل قدمی کرنے کے لیے بھی آپ پلان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو میں نے کوئی کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا، یہ بہت سیریس ایک پلان ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں سورہ فجر کی آخری آیات، بڑی ہی اہم آیات، آج ان آیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جان لیجئے کہ آج صرف کامیاب ہونے والوں کی بات نہیں ہوگی، آج بات یہ ہوگی کہ اللہ آپ کو کس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ ہر بندے سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ نہ صرف کامیاب ہو بلکہ ٹاپ لیول تک پہنچے، ٹاپر بنے، پار ایکسیلنس، بلند ترین مقام تک پہنچے، اور اس کے لیے وہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے 4 آیات سورہ فجر کی پڑھی ہیں، یہ قرآن مجید کی سب سے موٹیویشنل پکار ہے، سب سے موٹیویشنل الفاظ ہیں، جس میں اللہ مخاطب کر کے آپ کو کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے انسانیت کے لیے، نفس مطمئنہ، ٹاپرز کا ٹائٹل۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں اور ایک ڈیفائنڈ لائف گزارنے والوں کا ٹائٹل نہیں ہے، یہ بزدلوں کا ٹائٹل نہیں ہے، جو صرف کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو صرف جینا چاہتے ہیں، یہ ان کا ٹائٹل نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا ٹائٹل ہے جو بلند ترین اس اسائنمنٹ تک پہنچنا چاہتے ہیں جو ان کے خالق نے ان کے لیے تخلیق کی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، مطمئن نفس۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس نفس مطمئنہ کو ہٹا کر اپنا نام لکھ لیجئے ذرا اس کے آگے، اے میرے فلاں بن فلاں بندے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی بڑی پکار ہے۔ اے میرے فلاں بندے، نفس مطمئنہ کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا کر اپنا نام لکھیے اور پھر دیکھیے اللہ آپ سے کیا کہتا ہے۔ وہ سب سے بڑا مقام جو آپ کو دیتا ہے، جس کے بارے میں نے کہا کہ قرآن کی سب سے زیادہ موٹیویشنل پکار ہے یہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ کامیابی کا اصول بیان کرتا ہے تو قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل ہو گئے وہ کامیاب۔ پھر نفس مطمئنہ کون ہے؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا انعام کہتا ہے کہ میں ہوں، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کے پاس، دیکھ تیرا سب سے بڑا انعام میں خود۔ کیا یہ چیز ہمارے اندر موٹیویشن پیدا نہیں کرتی؟ میں نے آپ کو کہا کہ اب نفس مطمئنہ کی جگہ ذرا اپنا نام لکھ لیجئے وہاں پہ، اور پھر دیکھیے اللہ آپ کو کہے کہ میں تیرا انعام۔ راضیۃ مرضیہ، دوسرے نمبر پر انعام میری رضا، میری خوشی، کہ میں تجھ سے خوش ہو گیا۔ تیسرا انعام فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں کی صحبت۔ صحابہ اکرام پہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ تیسرے درجے کا انعام میرے بندوں کی صحبت، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ چوتھے درجے میں پھر فرمایا وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے وہ ان ٹاپرز کا مقام، یہ ان لوگوں کا ٹائٹل ہے جو ٹرینڈز کو فالو نہیں کرتے، جو خود ٹرینڈ سیٹر ہیں، ٹرینڈ کو بناتے ہیں لوگوں کے لیے، جو خواب نہیں دیکھتے، لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں۔ اگر یہ پکار بھی اگر ہمارے اندر کوئی آرزو پیدا نہیں کرتی، کوئی موٹیویشن پیدا نہیں کرتی، کوئی جذبہ پیدا نہیں کرتی، تو پھر ہم اپنے اس مقام کو نہیں سمجھے جو اللہ نے اتنا بڑا موقع دیا ہے اور کائنات کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ سو آج عمل کر لو، آج ہی عمل کرو، کیونکہ آج صرف عمل ہے، جزا نہیں، اور کل صرف جزا ہوگی عمل میں۔ حیرت ہے جس کے لیے پوری کائنات بنا دی گئی ہو، وہ کس درجے کا اس کا مقام ہوگا۔ یہ وہ نفس مطمئنہ ہے کہ قرآن کے آخرت میں قیامت کے دن اللہ اس کو پریزنٹ کرے گا، یہ دیکھو یہ ہے میرا بندہ، he is the man, he is the excellence, he is the signature، یہ ہے۔
है कोई इस जैसा? इसने मुझे प्रेजेंट किया था, इसकी ये मर्तबा है, ये मुकाम है, इसने अपनी उस अपॉर्चुनिटी को आपका फायदा उठाया पूरा पूरा, इसने उस मौके का फायदा उठाया। आज यहां पर मेरे कहने पर मेरे बच्चे जवान सब आए हैं, इसलिए मैं खुसूसी तौर पर उनसे मुखातिब हूं, अपनी बच्चियों से मुखातिब हूं। जिंदगी की शुरुआत है, यहीं से अपने आप को दुरुस्त कर लीजिए, यहीं से अपने उस डोमेन को मुरतब कर लीजिए कि आपने जिंदगी कहां पर गुजारनी। जिंदगी का ये मौका, अगर ये अपॉर्चुनिटी, ये मकसद अगर आपके सामने क्लियर हो गया हो, तो मैं आप आगे चलूं। आप इसके लिए तैयार हैं कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। अल्लाह ने आपके लिए जो जो असूल, जो जो मुकाम, मर्तबे तय किए हैं वो क्या है। कहीं हम जैसों की तरह जिंदगी के आखिरी हिस्से में पहुंचते वक्त अंदाजा और पता चले कि हम तो बहुत पीछे रह गए, जो वक्त करने का था हमने सोचने में गुजार दिया, जो हासिल करने का था वो हमने करवा दिया। तो अगर आप तैयार हैं तो अभी से समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी, उसका पैटर्न, उसकी तरजीहात क्या है। सबसे पहले जान लीजिए कि अल्लाह, उसकी कायनात सब आपको देना चाहते हैं। अल्लाह की सबसे बड़ी चाहत यह है कि वो आपको उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता है, मगर जान लीजिए कि वो अपने कवानीन को वायलेट करके आपको नहीं देगा। उसने अपने आप को अपने कवानीन का पाबंद बना रखा है, वो कभी भी आपको अपने कवानीन वायलेट करके, तोड़ के आपको नहीं देगा। मिशकात की एक बड़ी प्यारी हदीस है, उसको जान लीजिए कि हुजूर ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स की गैबी मदद की जाएगी उस काम में जिसके लिए उसको बनाकर भेजा गया है। वो देना चाहता है, मगर आपको अपने आप को क्वालिफाई करवाना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं मिलेगा। और जिसने अपने आप को क्वालिफाई करवा लिया, ये भी जान लीजिए, ख्वाह उसको मानता हो या ना मानता हो, उसको देकर रहेगा। यहां पे हम सब बराबर हैं, कोई तखसीस नहीं। दूसरी बात, सबसे अहम बात, दुनिया के इम्तिहान में आपको बता दिया जाता है कि आपके एडवांटेजेस क्या हैं। मसलन क्या आपको बता दिया जाएगा कि आपसे पेपर कब आपका टाइम आउट होगा और आपसे पेपर ले लिया जाएगा, और दूसरा मौका भी आपको दिया जाएगा। अगर सप्ली आ जाए या फेल हो जाए, आप दोबारा अपीयर हो सकते हैं। इस जिंदगी के इम्तिहान में यही दो सबसे बड़े डिसएडवांटेज हैं, इसको अभी से समझ लीजिए। एक, आपको पता नहीं आपकी मोहलत कब खत्म होगी, कब आपसे पेपर ले लिया जाएगा, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगले लम्हे, अगले साल, अगले महीने कोई नहीं जानता। दूसरा बड़ा एडवांटेज, आपको दूसरा मौका हरगिज हरगिज नहीं दिया जाएगा। फिर ना हो सियावन तेरा, बाबा बोले, फिर ना हो सियावन तेरा, फिर ना हो सियावन तेरा। कुरान ने इस डिसएडवांटेज को जगह जगह पर बयान किया ताकि कोई कमी ना रह जाए। उसने उन लोगों ने जिन्होंने इस कानून को समझा नहीं, उसकी हसरतें बार बार नकल की। फयकूलु रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, फिर वो कहते रहेंगे, या मेरे रब मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे, मुझे समझ आ गई कि मुझे क्या लिखना था, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे। और उन्हें हरगिज हरगिज मोहलत नहीं दी जाएगी। उनकी हसरतों में से एक हसरत ये थी कि वो कहेंगे, अल्लाह मुझे एक मौका और दे दे, मैं जान गया, अब मैं तुझे अमल करके दिखाऊंगा, मैं तुझे प्रोड्यूस करके दिखाऊंगा। मगर उनको मौका नहीं दिया जाएगा। अगर ये डिसएडवांटेजेस हैं तो एडवांटेजेस भी बहुत हैं, वो भी मेरी गुफ्तगू का मौजू नहीं। मसलन आपको पेपर आउट करके दे दिया गया, आपको सवाल सारे बता दिए गए, नबी, पैगंबर, उस्ताद भेजकर प्रैक्टिकली करके दिखा दिया गया सारा कुछ। ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मगर यहीं से अपनी जिंदगी को सोच लीजिए कि ये दो डिसएडवांटेजेस हैं, बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस। अब आइए अपने उस मैदान अमल की तरफ कि आपने खेलना कहां पर है, आपने अपनी जिंदगी गुजारनी कहां पर है, आपका खेलने का मैदान कहां। तीन चीजें हैं जिसको आप जहन में रख लीजिए तो कभी भी अपनी जिंदगी के बारे में धोखा नहीं खा सकेंगे। अपनी सलाहियतों को, अपनी मेहनतों को आप जाया नहीं करेंगे। बड़ी अहम बात है
आपके सामने बड़ी आसानी के साथ अर्ज कर रहा हूं, लेकिन यकीन जानिए बड़ी घिसट घिसट कर, घुट घुट कर यहां तक पहुंचा, एक एक फेज को गुजार कर, झेल कर यहां तक पहुंचा हूं, आपको बड़ी आसानी से मिल रही है। बेटा इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि सबसे बदकिस्मत इंसान वो है, पहला फेज जहां पे इंसान सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है, पहला फेज जिंदगी का। ये बात अगर आपने समझ ली, तकदीर के जो अजली मसले हैं जो कभी हल नहीं हो पाते, वो बड़ी आसानी के साथ आपसे हल हो जाएंगे। चूंकि बड़ी आसानी से मिल रही है, इसलिए मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं, इसको बड़ा गौर से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे बड़ा धोखा इंसान को, बदकिस्मत तरीन इंसान, बदनसीब इंसान वो है जिसके लिए अल्लाह ने उसके नसीब में कोई शायद लिखी नहीं और उसके लिए वो कोशिश करता रहा। अल्लाह ने आपके नसीब में जो कुछ नहीं लिखा, आप उसके लिए कोशिश करते रहे। सबसे बदनसीब इंसान, ये पहला धोखा है इंसान का। मैं प्रैक्टिकली जरा बात करूं, आपको कुदरत मैसेज देती है, बार बार पैगाम पहुंचाती है कि आप इसके लिए नहीं बने मेरे बच्चे, आप इसके लिए नहीं बने, मगर इंसान फिर भी अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है और अपनी सारी जिंदगी खपा देता है उस काम के लिए जिसको जो उसे मिलनी नहीं। फर्ज कीजिए मैं एस्थमेटिक हूं, फर्ज कीजिए मुझे जिस्मानी कोई माजूरी है और मैं सारी जिंदगी ये ख्वाहिश पाल के बैठा रहूं कि मैंने आर्मी में जाना है, तो बताइए मुझसे बड़ा बदनसीब कौन हुआ। आप बनाए नहीं गए डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, आपके लिए कुछ और सोच रखा था, आपको सलाहियतें और एनवायरनमेंट और सर्कमस्टेंसेस कुछ और दिए गए। कुदरत आपको जगह जगह मैसेज देती रही, मगर आप बजीद रहे कि मैंने इसी फील्ड में जाना है। इससे बड़ा बदकिस्मत कोई। और आप देखिए हमारे पैशन कई हद तक क्या इसी फेज में, इसी डोमेन में नहीं घूमते, ये हमारी डोमेन ही नहीं। ये सबसे बड़ी बदनसीबी है इंसान की कि उस काम के लिए मेहनत करता रहे जो उसके नसीब के में लिखे ही नहीं गए। और इसमें कुदरत बड़ा वाज़ेह तौर पर आपको पैगाम, एक नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर आपको पैगाम भेजती है। दूसरी बड़ी सबसे बड़ी नसीबी, पहली बात अगर क्लियर हो गई तो मैं आगे चलूं कि ये आपकी डोमेन नहीं, यहां पर नहीं खेलना मेरे बच्चे। दूसरी सबसे बड़ी बदनसीबी, जो अल्लाह ने आपके लिए बगैर मेहनत के लिख दिया है, आप उसके लिए मेहनत करते हैं। और इस फेज में, इस डोमेन में आपको दुनिया की अजीम तरीन अक्सरियत मिलेगी। शायद आज आप मेरी बात पे यकीन ना करें क्योंकि एक बहुत बड़ी अक्सरियत इस काम में लगी हुई है, लेकिन अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके असूल को अगर कोई तोड़ता है, खाओ सारी दुनिया तोड़े, उसका असूल नहीं बदला करता। दूसरी डोमेन जो आपके लिए हरगिज नहीं है, सबसे ज्यादा लोगों की अक्सरियत इसी डोमेन में, इसी मैदान में हारती है, खता खाती है, वो यही है। वो कौन सी डोमेन है? जो अल्लाह ने आपके लिए बगैर मेहनत के लिख दिया है, आप उसके लिए सारी जिंदगी कोशिश करते हैं, या बहुत थोड़ी मेहनत करने से जो चीज आपको हासिल हो जानी है, आप सारी जिंदगी उसके लिए मेहनत करते हैं। ये कौन सा मैदान है, ये कौन सी डोमेन है? आपका रिस्क सबसे बड़ी मिसाल, आपकी अर्निंग, आपका स्टेटस, रुपया पैसा जो आपने कमाना है, अल्लाह जगह जगह कहता है वह तर्जुकु मन तशाउ बगैर हिसाब। ये कुलिया, ये कायदे किस कानून से मैंने देनी है, मैंने किसी को नहीं बताया। ये तुम्हारी डोमेन ही नहीं। तुम्हें जो तुम्हारा रिस्क लिखा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, बगैर एफर्ट्स के मिलकर रहेगा, या फिर बहुत थोड़ी मेहनत करके मिलेगा। अब देखिए एक अजीम अक्सरियत सिर्फ इसी डोमेन का शिकार नहीं, इसी मैदान का शिकार नहीं। इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लीजिए। मुझे अगर घंटा भी लगाना पड़ा सिर्फ इसी काम पे मैं लगाऊंगा। ये आपकी जिंदगी के फैसला कुन मरहले हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे। यहीं से आपने अपनी जिंदगी बनानी है और यहीं पर गंवानी। सबसे खतरनाक फेज, आप उस चीज की अहमियत, उस चीज को मांगते रहे, उसके लिए कोशिश करते रहे जो आपके नसीब में नहीं लिखी गई, वो अल्लाह ने खालिस अपने हाथ में रखी। दूसरी वो शय जो अल्लाह ने बगैर मेहनत के आपको देनी है, मगर आप उसके लिए कोशिश करते रहे, आपका रिस्क है। अब आइए वो तीसरा मैदान, तीसरी डोमेन जिसका सारा दारोमदार आप पर है, जिसके लिए अल्लाह ने आपको बनाया है। आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपकी खुद शनासी, आपकी वो असाइनमेंट जिसके लिए अल्लाह ने आपको बनाया है, आपने खुद तलाश करनी है।
یہ وہ फेज है जिसमें आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, खुदा भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा इसमें, ये बात तय कर लीजिए। तीसरा वो मैदान है, तीसरी वो डोमेन है जिसमें आप कोशिश करेंगे तो मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। ये अल्लाह की तरफ से तय शुदा कानून है। और उसमें सबसे ऊपर सबसे पहली चीज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपकी खुद शनासी, आपको किस मकसद के लिए भेजा गया है। ये मेरे हाथ में चाबी है, ये मेरे हाथ में रुमाल है, आप दोनों चीजों को देखते हैं, एक मिनट में फौरन वाज़ेह हो जाता है कि इन चीजों का कोई मकसद था। ये आप सामने गिलास पड़ा है, इसके अंदर से जो पानी पीने की सिफ्त है निकाल दीजिए, गिलास नहीं रहेगा। कैसे हो सकता है कि आपकी कोई एक स्पेशल सिफ्त ना हो, आपकी कोई स्पेशल असाइनमेंट ना हो। ये है वो आपकी तख्लीक का मकसद जो कि आपने खुद हासिल करनी है। खुदा कहता है खाना नहीं मिलता ना खाओ, ना उसकी तरफ दौड़ो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मगर ये सोच आप ही को सोचनी पड़ेगी। ये है इंसान का असल मैदान, उसकी जिंदगी, उसकी एफर्ट्स लगाने का असल मैदान, अपनी खुद शनासी को तलाश करना। और ये कोई मंजिल नहीं है, तो सारी जिंदगी का सफर। और जो आपको अपने खालिस अपने जोरे बाजू पर कमानी होगी, आपकी असल डोमेन क्या है। जन्नत आपको नहीं लगती कि ऐसा मकसद, जन्नत आपने खुद कमानी है। अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है, जिस मकसद के लिए आप भेजे गए हैं, अल्लाह की इबादत करना, उस मकसद को पाना कि अल्लाह आपसे राजी हो जाए, ये सारी आपकी तो थर्ड डोमेन है, थर्ड मैदान है जिसमें आपने अमल करना है। और मजे की बात आपको बताऊं, आपसे सवाल भी सिर्फ इसी तीसरी डोमेन में होगा, इस तीसरे ही मैदान में होगा। पहले दोनों के बारे में कुछ सवाल आपके लिए नहीं किया। अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा कि आपको शक्ल कैसी दी, आपने अपने आप को कितना संवारा, कितना साफ सुथरा रखा, कितना खूबसूरत बनाया। अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा कितने पैसे तुमने कमाए, कितने तुमने स्टेटस हासिल किया, कितनी लग्जरीज हासिल की, नहीं पूछेगा, क्योंकि आपकी डोमेन नहीं, आपको दिया नहीं गया। अल्लाह इस तीसरे मैदान में हर वक्त पूछेगा। आप इस डोमेन में, इस मैदान में अल्लाह के सामने मसऊल होंगे, और यही आपकी जिंदगी का मकसद। अब इन तीनों चीजों को जरा सामने रख के देखिए, आप अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने आप को देखिए कि हमारी जिंदगी उन पहले दो मैदानों में नहीं सारी जिंदगी जाया हो गई। आपकी जिंदगी का अगर आपने कोई प्लानिंग भी की है तो किस चीज की है कि मैंने रिस्क किस तरह कमाना है, मैंने स्टेटस कैसे हासिल करना है। ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गुमराही है, जिसको आज कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेंटर नहीं बताता। लगा देंगे ज्यादा से ज्यादा चंद चिल्लों, वजीफों पर, रिचुअल्स पर, ज्यादा से ज्यादा तो मजहबी आपको मिलेगा भी। कोई नहीं बताएगा कि आपकी असल डोमेन क्या है, किस मैदान में रहकर आपने अमल करना है। वो दोनों जिसके लिए हम खप गए, मर गए, वो हमारे करने के काम ही नहीं थे। और मैं आपको उस्ताद कहता है बड़ी खूबसूरत बात की, इसको भी लिख लीजिए, अपने दिल पर लिख लीजिए। आपकी जिंदगी का मकसद, भूल जाए इस बात को कि आपकी जिंदगी का मकसद, आपकी जिंदगी का पर्पस ये है कि आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, एमबीए कर लें, कारोबार कर लें। ये आपकी जिंदगी का पर्पस नहीं है, मकसद नहीं है। आप जो भी बनना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उससे इंपैक्ट मुआशरे पर, दुनिया पर, लोगों पर और आपकी जात पर क्या पड़ रहा है, असर क्या पड़ रहा है, ये आपकी जिंदगी का मकसद है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इंजीनियर, डॉक्टर बनना ये जिंदगी का मकसद नहीं। जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, उससे लोगों पर और आपकी जात पर इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, असर क्या पड़ रहा है, ये आपकी जिंदगी का मकसद है। आज देखिए ना, कई डॉक्टरों को आप डॉक्टर नहीं कहते, डाकू कहते हैं। डॉक्टर तो बन गए वो, मगर उससे हासिल क्या है, उनका अपना नफ्स। डॉक्टर साहब की बकौल बड़े ही खूबसूरत अल्फाज के, जिसका आइडियल उसका अपना नफ्स है। तो जब हम दुनिया की बात करते हैं, दरअसल अगर उसके रूट कॉज पे जाएं तो हासिल करना क्या है, अपना नफ्स। अपने नफ्स को आप एकोमोडेट करते हैं, उसको आप चेरिश करते हैं, उसको आप इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसको आसाइशें देने की कोशिश करते हैं। इंसानों में डिक्लेयर सबसे घटिया आइडियल इंसान का अपना नफ्स है। मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, कुरान की बात नहीं कर रहा, वो तो वैसे ही आजकल सुन के ही हम बिदक जाते हैं। डिक्लेयर इंसानों में सबसे घटिया आइडियल जो सा है, इंसान का अपना नफ्स। इसलिए मगरिब वालों ने मुल्क को आइडियल कहा जो उससे बेहतर था, इंसानियत को आइडियल कहा जो उससे बेहतर था।
कुरान कहता है इससे भी सबसे बड़ा आइडियल है अल्लाह। आप अगर डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, कारोबार करके सिर्फ अपनी जात को आइडियल बनाना चाहते हैं तो आपने सबसे घटिया आइडियल चूज किया। भूल जाएं ये बात कि डॉक्टर, इंजीनियर, कारोबार करना ये आपकी जिंदगी का मकसद है। जो भी बनना चाहते हैं उससे जो इंपैक्ट पड़ेगा वो आपका मकसद है। हाँ, मैं इसको दूसरे एंगल में आपके सामने रखता हूं। आप इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, बहुत बड़ा आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद है, बनिए डॉक्टर। इसके लिए प्लान कीजिए कि मेरी जिंदगी का मकसद ये होगा। रुथ फाओ भी तो एक डॉक्टर थी जो जर्मन से यहां पर आई और उस अकेली औरत ने पाकिस्तान को लेप्रोसी फ्री कर दिया, जजाम से भी उसको पाक कर दिया। मकसद था, वो भी डॉक्टर था। इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, उसके लिए जो भी बनना चाहते हैं कीजिए, अपना मकसद पहले तय कीजिए। और ये प्रोफेशंस की बात आपको एक और कर दूं। अब जो तहकीक आई है, आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर बड़ी आसानी से मुयस्सर है। बता रहे हैं जी कि अगले 10 सालों में अमेरिका में लॉयर्स, वकला खत्म हो जाएंगे, ये शोबा ही खत्म हो जाएगा अगले 10 सालों में। सिर्फ 90% वकला खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 10% वो रह जाएंगे जो पॉलिसी मेकर है। अगले 20 सालों में अमेरिका में डॉक्टर्स खत्म हो जाएंगे, 90% डॉक्टर्स खत्म हो जाएंगे, 10% सिर्फ ऐप रह जाएंगे जो कि डायग्नोस करेंगे और दवाइयां लिख देंगे। ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। आप युवा नो हरारे, बड़ा मशहूर इसराइली एक राइटर है, बेस्ट सेलर उसकी किताब रही है, उसको पढ़ लीजिए। वो कहता है अगले 20 सालों में अमेरिका में डॉक्टर्स 90% खत्म हो जाएंगे। हम मेडिकल कॉलेजों में भेज रहे हैं बच्चों। ये चले, मैं तो शायद यकीन मुश्किल हो जाए। मैं आपको आज की मिसालें, अगर अपनी जिंदगी की मिसालें देता हूं, आज आप ढूंढने से भी अगर कोशिश करेंगे ना, आपको टीवी का मैकेनिक कोई नहीं मिलेगा। टीवी खत्म हो गया है इस हमारे माशरे। वीसीआर का कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। हम लोग जो वीसीआर को देखते आए हैं, टीवी को देखते आए हैं, अब प्रोफेशन खत्म हो गया। इसको भी छोड़े। एक हफ्ता पहले यक जुम्बिश कलम प्लास्टिक पे पाबंदी लगी और बेचारे आज एहतजाज कर रहे हैं, उनका कारोबार खत्म हो गया, उनका प्रोफेशन खत्म हो गया। प्लास्टिक बैग जो बनाते थे वो एहतजाज कर रहे हैं माल रोड पे आज भी कि हमने एक सारी जिंदगी काम सीखा, उसको किया, उसको कामयाबी से किया, वो एकदम से खत्म हो गया। जो प्रोफेशन जिसको आप अपनी जिंदगी का मकसद बना के बैठे हैं, वो तो खुद अपनी जिंदगी के लिए सब चिराग की टमटमाती लोग की तरह भीख मांग रहा है। ये आपकी जिंदगी का मकसद किस तरह हो सकता है? धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। आप उस दूसरी डोमेन में खेल रहे हैं जो कि आपके करने का काम नहीं था।